Hello everyone, very welcome to iExamB, 50% faster preparation for competitive exam, and this is video 15. If you have not gone through the earlier video, please you must do all these questions because these are going to be very important question for RBI Grade B exam. This is the question I asked in the last video. इनमें से कौन सा जो इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च करने के लिए किया गया प्रोग्राम है, कौन सा नहीं है? सो द आंसर हियर इज ऑल दीज थ्री आर going to help the digital infrastructure of India. ENAM, GEM and Umang have transformed the marketplace and have enabled citizens to access services across the sectors. This is the first question for today. Which of the following statements regarding the foreign portfolio investment is false? Foreign portfolio investment, FPI. Here you need to understand the difference between FPI and FDI. So FDI is an investment made by a firm or individual in one country into business interest located in another country. FPI refers to the investment made in securities and other financial assets issued in another country. FDI investors are considered active investors and FPI investors are considered passive investors. Nations with a high level of FDI can encounter heightened market volatility and currency turmoil during times of uncertainty. If you know the basic difference, then you know that E is the answer here, because FDI is a longer term investment. I give an example always. Suppose Volkswagen came to India, they have set up a factory. Apple has now come to India, they have set up a factory. वो एप्पल फ़ोन बना रहे हैं, तो दिस इज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे हैव सेट अप ए फैक्ट्री, ए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप. Suddenly they cannot sell their shares and go away. Foreign portfolio investment क्या है? You have bought suppose the shares of that company, तो आप शेयर्स को बेच के जा सकते हो. दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो एफडीआई क्या है? इनटू द बिजनेस इंटरेस्टेड लोकेटेड इन अनदर कंट्री, एंड एफपीआई रिफर्स टू सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स इशूड इन दैट कंट्री. तो बेसिकली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है. बोथ मेथड्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर क्रूशियल फॉर द ग्लोबल ट्रेड. किसी भी कंट्री को दोनों चाहिए होते हैं, बट योर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज हॉट मनी. यानी कि कभी भी, जैसे अभी क्या हुआ है रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, इंडिया इज रिसीविंग मोर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. आज से 6 महीना पहले, 4 बार पहले ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जाने लग गया था. व्हेन यूएस इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, तो लोगों को लगा यूएस में अगर मुझे पैसा ज्यादा मिल रहा है, अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो व्हाई आई कीप माय मनी इन इंडिया. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग? यूएस हैज स्टॉप्ड द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज्ड, वहां के फेडरल रिजर्व ने पॉज कर लिया, एंड इंडिया इज ए ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी ग्रोथ. तो दिख रहा है कि यहाँ पे ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकते हैं. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी रिसेंट टाइम में बढ़ने लग गया है. इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ये जो मार्केट वोलेटिलिटी का रिस्क होता है, करेंसी का रिस्क होता है, करेंसी के प्राइस घट बढ़ सकते हैं, एक्सचेंज रेट, वो यहाँ ज्यादा होता है. एफडीआई में वो रिस्क कम होता है. यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, काफी न्यूज में रह रहा है आजकल बिकॉज ऑफ द डिस्कशंस अबाउट गूगल, एप्पल, these companies, Microsoft creating monopoly in different market. तो प्रश्न क्या है मेरा, आरबीआई के एग्जाम में ना जो करंट में चीजें चल रही होती हैं उससे रिलेटेड चीजों पे प्रश्न आ जाते हैं. तो यहाँ पे प्रश्न हमारा ये है, which of the following statement is false regarding the Competition Commission of India? CCI is a constitutional body under the article of the Indian Constitution. Commission consists of one chairperson and 6 members appointed by central government. One of the primary objective of the commission is to eliminate practices having adverse effect on competition. ये तो नाम से पता लग रहा है, करेक्ट है. ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड याद रखना है, राइट? ये तो ठीक ही होगा. इट ऑल्सो वर्क्स ऑन एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल, ये भी ठीक है. अब ए और बी इजी हो गया है ना काफी, राइट? सो दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. It is a statutory body of the Government of India responsible for enforcing Competition Act 2002. It was constituted in 2009.
तो बहुत सारे लोग को शिकायत करनी होती है गूगल के खिलाफ, अमेजन के खिलाफ, माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कि ये कंपनी मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है। जैसे अभी की न्यूज मैंने एक जो दिखाई थी उसमें ये था कि ऐप स्टोर पे है, अगर वो हाई चार्ज मांग रहा है, इवन गूगल के भी प्ले स्टोर पर सेम हो रहा है, इफ यू डू एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दे आस्क वेरी हाई चार्ज, आई थिंक समवेयर मोर देन 20% अदर कंपनी से, दिस इज ए मोनोपोली। तो उसको सीसीआई देखता है कि ये सही शिकायत है कि नहीं है। दैट रीजन श्रीलंका गॉट 350 मिलियन लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। इस टाइप की न्यूज आती है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है आरबीआई में, एडीबी हैज सैंक्शनड दिस लोन टू श्रीलंका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडीबी इज नॉट करेक्ट। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1966, ये सही है। It has got 68 shareholding members and all of them belongs to Asia Pacific region। यहाँ पे है असली मुश्किल बात, क्योंकि एक्चुअली इसमें 68 मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, बट ऑल आर नॉट एशियन कंट्री। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, करेक्ट। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मनीला, फिलीपींस में ही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे 68 शेयर होल्डिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग 49 फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन, इस्टेब्लिश्ड ईयर बाकी सब ठीक है। जापान लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है, फॉलोड बाय यूएसए। यूएसए देखिए आउट ऑफ एशिया हो गया, देन इंडिया, देन चाइना एंड देन इंडिया। एंड द एम इज सोशल डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन द एशिया पैसिफिक रीजन विद इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन। तो इसमें आइडिया क्या है, जिस तरीके का वर्ल्ड बैंक है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, हंगर, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव, उस टाइप का ऑब्जेक्टिव एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट सोवरेन वेल्थ फंड। सोवरेन वेल्थ फंड भी आजकल काफी न्यूज में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के पास जो ज्यादा पैसा हो गया कंट्रीज के रिजर्व को, सो कंट्रीज ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी in proper places where in addition to the safety of the fund they also get some return over it। क्वेश्चन क्या है इसमें से करेक्ट क्या है, फंड्स टू फाइनेंस रिलीफ वर्क, बेल आउट पैकेज एंड अदर इमर्जिंग एक्टिविटीज। आई थिंक मैंने जो बोला उससे समझ में आ रहा होगा कि ऐसा फंड नहीं है, ये केवल वेलफेयर करने के लिए नहीं बनाया गया है। फंड्स ऑफ गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यस यही मैं बोल रहा था आपको, मनी इज इन्वेस्टेड टू अर्न प्रॉफिटेबल रिटर्न, बिल्कुल, क्योंकि ये देश का पैसा है। जैसे इंडिया के पास ऐसा एक्चुअली सोवरेन वेल्थ फंड बनाने की बात हो रही है, आई डोंट थिंक कि हमने कोई ऐसा बड़ा फंड बनाया है। सऊदी अरेबिया का मुझे अच्छे से ध्यान है, उनके पास बहुत बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड है, बिकॉज जो ऑयल बेच के उनके पास पैसा आया हुआ है, दे वांट टू इन्वेस्ट एट प्रॉपर प्लेस, राइट। ये थोड़ा स्क्रीन में दब रहा है, बट आई एम कमिंग टू द राइट आंसर कि यहाँ पे statement B and C are correct. Funds are created from the recovery of the black money with the government. These are also there in the sovereign wealth fund। मतलब गवर्नमेंट का पैसा सोवरेन है, तो उसमें जो भी गवर्नमेंट का पैसा है वो होता है इन्वेस्टमेंट फंड। मनी ड्राइव्ड फ्रॉम ए कंट्रीज रिजर्व सेट असाइड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस टू बेनिफिट द कंट्रीज इकोनॉमी एंड सिटीजन। Funding comes from central bank reserve. Investment are made in stock, bond, real estate, precious metal or alternative investment such as private equity और hedge fund। कोई भी टाइप के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव है सोवरेन वेल्थ फंड का, दैट इज टू अर्न प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे कि वो फंड बड़ा हो सके। हाँ, लेकिन सेफ्टी ऑफ फंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स ए गवर्नमेंट मनी, इट्स ए सोवरेन मनी। तो एकदम बहुत हाई रिस्की में करें या ना करें, डिपेंड्स ऑन द फंड। अब बजटिंग मेथड इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, दैट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम द स्क्रैच विथ फ्रेश इवेल्युएशन ऑफ ईच लाइन आइटम इज कॉल्ड। जितने भी बजट के एक एक लाइन आइटम है, देखो नॉर्मली क्या होता है बजट में, लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, लेकिन इसका आंसर है जीरो कॉस्ट बजटिंग। ये मेथड क्या है, all expenses are justified for each new period। Zero cost budgeting starts from a zero base and every function within an organization is analyzed for its need and cost। तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है ना, जीरो कॉस्ट, हर बार पिछले बार का एक्सपेंस करो खत्म, हर बार जीरो से शुरुआत करेंगे। आरबीआई एक्ट्स एज ए बैंकर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये तो मालूम ही है फंक्शन ऑफ आरबीआई।
इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी एक्सेप्ट विच स्टेट। अब कौन सा स्टेट है जिसमें आरबीआई बैंकर टू गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रहा है? इंटरेस्टिंग है, इजी है आंसर, तो अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। दिस इज फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ आरबीआई। सिक्किम। सिक्किम जो है, तो इसमें सिक्किम में कर कौन रहा है काम? स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, स्टेट ओन्ड बैंक हेडक्वार्टर्ड एट गैंगटॉक। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का बैंक का काम करता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट ट्रेड्स ऑन रेगुलेटेड एक्सचेंज एंड हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ अनदर एसेट इज कॉल्ड। अब ये तो आपको समझ में आ गया, जिसकी वैल्यू किसी और एसेट से ड्राइव होती है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। बट कौन से टाइप के डेरिवेटिव है? देखिए, फंड तो होना नहीं है, दो ऑप्शन कट गए। सिक्योरिटी भी क्यों होगा? एक्सचेंज बेस्ड डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। एक्सचेंज बेस्ड डेरिवेटिव तो कुछ होते नहीं है मेरे हिसाब से, बट कंफ्यूज जरूर करेंगे एग्जाम में आपको। तो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हैं, जो ये डेरिवेटिव हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों होते हैं, तो इनको हम एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव बोलते हैं। दीज आर द स्टैंडर्डाइज्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सच एज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और इसमें आपको यू हैव टू मेक एन इनिशियल डिपॉजिट और मार्जिन पेमेंट थ्रू द क्लियरिंग हाउस। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सचेंज पे होते हैं। फॉरवर्ड आर काउंटर पार्टी एग्रीमेंट ओवर द काउंटर। Which of the following is not a category of NPA? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी कौन सी नहीं है? तीन टाइप के एनपीए आपने पढ़े। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम इज गोइंग टू बी टफ, राइट? सो तीन टाइप के क्या पढ़े आपने? सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। बट कहीं कहीं आपने एसएमए के बारे में पढ़ा जरूर होगा, बट दीज आर नॉट एनपीएस। अभी ये एनपीए होने वाले अकाउंट हैं। स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट क्या है? जहां पे दिख रहा है कि पेमेंट डिले हो गया। इफ आई टेल यू इन ए वेरी क्रूड टर्म्स, सब स्टैंडर्ड अकाउंट कब होता है? व्हेन द पेमेंट इज डिलेड बाय 90 डेज। जब 90 दिन तक पैसा नहीं आया, पैसा मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस नहीं आया बैंक को, 90 दिन के बाद 91th डे बैंक विल हैव टू क्लासिफाई दैट अकाउंट एज एनपीए कैटेगरी सब स्टैंडर्ड। लेकिन 90 दिन से पहले क्या कर रहा है बैंक? 30 महीने बाद आ जाना चाहिए था पैसा। सॉरी, जैसे ड्यू हुआ, ड्यू होने के बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो आ जाना चाहिए था पैसा। ड्यू होने के बाद हर दिन बैंक ट्रिगर लगाएगा, बैंक पूछेगा। तो यहां पर 90 दिन से पहले स्पेशल मेंशन अकाउंट, 30 दिन बाद उसको बैंक लिख देता है स्पेशल मेंशन अकाउंट, बट दीज आर नॉट एनपीए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर बॉन्ड्स? मार्केट प्राइस ऑफ ए बॉन्ड कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। फेस वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड इज द इशू प्राइस। देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है ऑलवेज। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इस टाइप के वर्ड्स पे ध्यान देना है। ऑलवेज, नेवर। सो फेस वैल्यू हमेशा इशू प्राइस के बराबर होती है। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में सोचिए जरा। बॉन्ड्स ऑलवेज पे फिक्स्ड कूपन रेट, ऐसा कोई लिखा है? वेरिएबल कूपन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए ठीक है, क्योंकि जो बॉन्ड का प्राइस है वो बहुत सारी चीजों पे वेरी करता रहता है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसके, राइट? और बॉन्ड कैन बी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट और प्रीमियम टू द फेस वैल्यू। इसलिए फेस वैल्यू इज नॉट नेसेसरली द इशू प्राइस। नॉर्मली फिक्स्ड होता है, बट इन सम केसेस बॉन्ड में ऑल्सो है फ्लोटिंग कूपन रेट पॉसिबल है। You must have read this news. Mr. Ajay Bagga, first time an Indian has been appointed head of the president of the World Bank. क्वेश्चन ये नहीं आएगा आरबीआई ग्रेड बी में? आ सकता है आसान क्वेश्चन, बिकॉज अजय बग्गा के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, बट क्वेश्चन आएगा ये।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चलो इसको पूरा लाइन ऊपर का छोड़ दो. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव डजेंट बिलोंग टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. ये पहले लाइन एक्चुअली मैं चेंज करना भूल गया. सो दिस इज रिलेटेड टू द appointment of Ajay Bagga. That's why World Bank is in the news. So this was the news of some old period. Let's forget it. Mr. Ajay Bagga has been appointed as a president of World Bank. Which of the following objective doesn't belong to World Bank group? It provides loan, credit and grants. It provides low or no interest loan to low income countries. It insures lenders and investors against political risk such as war. It settles trade related disputes between its member. It settles इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट. पूरा लाइन पढ़ने में नहीं आ रहा, बट आई एम टेलिंग यू, इसमें लिखा हुआ है कि इट सेटल्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज. याद हो गया? यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड है, नीचे में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है. नाउ यू राइट which is the correct answer and you write that in the comment. I am sure that you must be doing hard work so that you also see your photograph, your name coming into the list of selected student. Work hard, believe in yourself. For any doubt, we are here at Exam B. Ask any question in the comment section. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए. ऑल द बेस्ट.